Once again, welcome to Hack Coding YouTube channel. And in this video, let's continue further. And this is my this is one of my best video. I'll bet you इससे अच्छा कोई नहीं explain कर सकता है because I have used animation in this video. और अगर आपको reverse of a number नहीं आता है using while loop, इस वीडियो को देखने के बाद you will totally understand it. Okay, so the problem statement for this programming using while loop, just reverse a number, don't hard code it, take a number from the user. Okay, so basically what you have to do, just suppose if any of the user enters a number 1 2 3 4 5, what he enters 1 2 3 4 5, then you have to give a output as 6 5 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 को हमें उल्टा कर देना है and we have to print 6 5 4 3 2 1. Is this clear? So this is the basic the problem statement which you are going to encode in this video. Okay, so let's see further what it can be happen. First, first thing, I am going to take the value of n is equal to 1 2 3 4. What the value of n? N value is 1 2 3 4 जो मैं user से लूंगा. Okay, जो मैं user से लूंगा and n is an integer, type of an integer. This is iteration 1. Iteration 1 बोले तो for loop, while loop. Okay, I loop का पहला iteration. Now I am also declaring an another variable that is known as sum. Sum की value मैं अभी क्या रख रहा हूँ? 0 रख रहा हूँ. What the value of sum is? 0. Okay, now this is the program. Don't panic, just I'll go by step. I have bet you इस वीडियो के बाद आप आंख बंद करके ये प्रोग्राम लिख सकोगे. Okay, without my reference of my video also. Blindly you can write this. Okay, blindly I'm giving you a guarantee for this. Okay, so the first statement is while n is greater than 0. क्या बोल रहा है? n is greater than, ओके, सो n इज ग्रेटर देन 0. n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4. क्या 1 2 3 4 बड़ा है 0 से? क्या 1 2 3 4 बड़ा है 0 से? हाँ है. दिस इज माई वाइल लूप एंड दिस इज माई कंडीशन. ओके, एंड रिमेंबर इन दिस आई एम नॉट this in this my n. Okay, I'll tell you. Okay, no problem, leave, just forget it. Here you will be wondering मैंने i plus plus नहीं यूज किया है ना. Here there is no i plus plus or i minus minus, but I'll tell you how basically it works. My n value will act as an increment or decrement here, but अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. Just wait for a while. Okay, let me not make it messy. Okay, now what is the first statement saying? R. What is the first statement, first line of this line? What is this? दिस इज आर. आर इज माई अनदर रिमाइंडर वेरिएबल. आर मेरा क्या है? एक रिमाइंडर वेरिएबल है जो मैंने इसमें असाइन करूंगा. ओके, आर को मैं क्या दे रहा हूँ? एन मॉडुलस 10. ओके, अभी देखो इधर, जस्ट फॉरगेट दिस, जस्ट कम टू दिस. जब मैं 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करूंगा, यहाँ एन मॉडुलस 10 मतलब 10 से डिवाइड करना, लेकिन रिमाइंडर लिखना. क्या लिखना? रिमाइंडर. n modulus 10 मतलब the number is divided by 10 and what the remainder is coming, that is basically modulus. है ना, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है. जैसे मतलब 3 मॉडुलस 2 क्या होगा? 1. 10 मॉडुलस 3 क्या होगा? 1 अगेन, क्योंकि 3 अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ 10 मॉडुलस 5 क्या होगा? 10 मॉडुलस 5 क्या होगा? 0. क्यों? क्योंकि 5 टोटली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर मेरा बचेगा 0. ओके, सेम वे ये सब छोटी छोटी चीजें. तो n मॉडुलस 10 किया तो मेरा रिमाइंडर क्या बचा? सी हेयर माई रिमाइंडर बचा 4. 4 को मैं किसको असाइन कर रहा हूँ? आर वेरिएबल को. किसको कर रहा हूँ? आर वेरिएबल. तो आई हैव रिटन आर इज इक्वल टू 4. इतना समझ में आया? इज दिस क्लियर? आई गॉट द वैल्यू ऑफ 4, क्योंकि जो भी यहाँ मेरा मॉडुलस है तो वो मैं किसको असाइन कर दे रहा हूँ? आर को. एन की वैल्यू मेरी क्या है? 1 2 3 4. मॉडुलस मॉडुलस मतलब डिवाइड, बेसिकली डिवाइड ही करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रिमाइंडर लिखते हैं. और 10 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा क्या आया? 4 आया, एंड दैट आई एम असाइनिंग टू अ वेरिएबल कॉल्ड आर. तो अभी कंपाइलर में आर इज इक्वल टू 4 वैल्यू फीड अप हो गई होगी. नाउ नेक्स्ट थिंग, what the thing is, sum into 10 plus r. ये मेरा एक नया नेक्स्ट स्टेटमेंट है. सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस आर. अभी देखो, ये बेसिकली दिस इज द प्रोग्राम हाउ बेसिकली वी रिवर्स द नंबर. ये लॉजिक है इसका, जो सो जस्ट अंडरस्टैंड. सम इंटू 10, यहाँ पे सम, इनिशियली सम की वैल्यू क्या है? 0 है. ये अभी भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ. अभी ये चीज अभी भूल जाओ. जस्ट सी माई पॉइंटर इन दिस वीडियो, जस्ट सी माई पॉइंटर. अभी सम की वैल्यू क्या है? 0 है. तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा? 0 होगा. 0 प्लस आर. आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा. तो 0
+4, 0 + 4, एक मिनट मुझे इरेज कर देना सर। हाँ, तो अभी मेरे को सम इंटू 10 से क्या मिला मुझे, सम इंटू 10 से मिला मुझे 0 प्लस प्लस और आर से मुझे क्या मिला 4। तो 0 + 4 क्या होता है, 4 होता है। और ये 4 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, कहाँ पे अलॉट हो जाएगा, सम पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, सम वेरिएबल को। तो क्या मेरा अब जीरो जो सम मेरा 0 था, नाउ इज हैज इट बिकम 4। अभी क्या मेरी सम की वैल्यू 4 हो गई है। इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब देखो n = n डिवाइडेड बाई 10। अभी ये चीज देखो, अभी n की वैल्यू क्या है, अभी n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं चेंज नहीं किया ऊपर, हम बस ऑपरेटर। लेकिन अभी n की वैल्यू तो 1 2 3 4 है। जब मैं 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या आता है, 1 2 3 आता है। मेरा क्वेश्चन क्या आता है, 1 2 3 आता है। इज दिस क्लियर। तो जो ये 1 2 3 वैल्यू यहाँ पे जो आई है मेरा, ये जो n डिवाइडेड बाई 10 करने से, क्योंकि n की वैल्यू क्या ली है मैंने, 1 2 3 4 ली है। तो 1 2 3 कहाँ पे असाइन हो जाएगा, n को असाइन होगा, और वही n मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, n की वैल्यू n = 1 2 3। क्या आइट्रेशन नंबर 1 क्लियर है, क्या इटरेशन नंबर 1 क्लियर। अगर नहीं क्लियर है, जस्ट गो बैक एंड अंडरस्टैंड अगेन, बिकॉज इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड कुछ नहीं हो सकती है। नाउ कमिंग टू दिस, अभी रिमेंबर व्हाट द वैल्यू ऑफ, नाउ n इज रिप्लेस्ड बाय विच वैल्यू, n इज रिप्लेस्ड बाय 1 2 3। सम की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो गई है, 4 हो गई है। r की वैल्यू इज 4। इज दिस क्लियर, इतना समझ में आ गया। नाउ लेट्स डू दिस। अब देखो n की वैल्यू मेरी 1 2 3 हो गई है। सम ही मेरा क्या है, सम मेरा क्या है, 4 है। सम मेरा क्या है, 4 है। इतना समझ में आ गया पहले आइट्रेशन के बाद। नाउ ये लूप, अब देखो n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 हो गए। क्या 1 2 3 0 से बड़ा है, हाँ है। अगेन दिस लूप विल, अगेन दिस ऑल दी थ्री स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। इज दिस क्लियर। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट अगेन। अभी क्या n की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 है। n की वैल्यू क्या होगी मेरी, 1 2 3 हो गई। 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 1 2 3 मॉडुलस 10 क्या होगा, रिमाइंडर 3 आएगा कि नहीं आएगा मेरा, रिमाइंडर मेरा 3 आएगा। तो अब देखो जब रिमाइंडर मेरा 3 आएगा तो मैं आर को क्या दे दूंगा, 3 दे दूंगा। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने से, एक मिनट, इसको सॉल्व करने से n मॉडुलस 10, क्योंकि n की वैल्यू पहले 1 2 3 4 थी, लेकिन पिछले आइट्रेशन में देखा वो 1 2 3 हो गई। और 1 2 3 को जब मैं 10 से डिवाइड मॉडुलेट किया तो क्या मेरा रिमाइंडर आया 3, द रिमाइंडर केम 3। सो नाउ द 3 वैल्यू विल बी असाइंड टू r, दैट ओनली आई हैव डन हियर। Just I am writing the dry run. This is basically a dry run which compiler does automatically. But just for explaining purpose, I am doing this. Now, what is the value of sum? अब देखो ये अभी रुक जाओ, just go step back. Now coming to the second step. Just forget. Now, wait a minute. Now sum into 10. Sum into 10 मतलब sum की वैल्यू क्या है, sum अभी क्या है मेरा 4 है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, होगा 40, होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसमें मैं r भी ऐड कर रहा हूँ, आई एम एडिंग r ऑल्सो। तो r की वैल्यू, व्हाट द वैल्यू ऑफ r इज, r वैल्यू इज 3। तो 40 + 3 कितना हो गया, 43। तो नाउ द सम वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय 43, द सम वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय 43। that again it is going to do there, see some value is replaced by 43। is it clear। now what is value of n, n value is 1 2 3, n वैल्यू इज 1 2 3। नाउ अब जाके n की वैल्यू चेंज होगी ना, ऊपर में तो कहीं n की वैल्यू चेंज हुई नहीं, अब जाके हम n की वैल्यू चेंज करेंगे। तो n मॉडुलस 10 किया तो हमारी वैल्यू क्या आई, 1 2 आई। क्वेश्चन क्या है, 1 2 है। यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 10 करने से क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये होता है मेरा क्वेश्चन और ये मेरा होता है मॉडुलस, ये मैंने 1000 बार आपको बता दिया। तो ये जो 1 2 है ये किसको असाइन हो जाएगा, n को असाइन हो जाएगा, और n को असाइन होने के बाद क्या हो जाएगा, n वैल्यू इज 1 2। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, अप टू यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब n की वैल्यू क्या हो गई है, 1 2 हो गई है, और सम मेरा 43 है। इतना तो क्लियर हो गया पिछले आइट्रेशन से। ओके सॉरी सॉरी, वेट वेट अ मिनट, बेसिकली ये आइट्रेशन 2 है। ओके, पॉइंटर ऑप्शन पेन, दिस इज आइट्रेशन 2, मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, दिस इज मेरा आइट्रेशन 2 है, ठीक है। नाउ सी दिस इज माई आइट्रेशन 3, थोड़ा जस्ट इग्नोर माई मिस्टेक, ओके सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, दिस इज माई आइट्रेशन 3। नाउ अगेन n की वैल्यू क्या है, 1 2 है। क्या 12 0 से बड़ा है, हाँ है। अगेन ये तीन मेरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अगेन मेरे ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। नाउ देखो 1 2 को जब अगेन 1 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मॉडुलेट कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या है, 2 आया। तो सी मैं यहाँ पे रिमाइंडर 2 लिख दिया, ठीक है। नाउ सम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 43 है। तो 43 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 430 आ जाएगा।
और 430 में मैं 2 ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, तो दैट विल मेक इट टू 432। तो नाउ द सम हैज बिकम 432। इज दिस क्लियर? नाउ नाउ क्वोशंट, मेरा क्वोशंट क्या है, 1 है, तो n की वैल्यू, ये जब यहां से मेरा 1 आ रहा है तो n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी मेरी, सी n वैल्यू हैज बिकम 1। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, n की वैल्यू इज 1, मेरा सम हैज बिकम 432 फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, राइट? नाउ n इज ग्रेटर देन 0, 1 क्या 0 से बड़ा है? हाँ है, ओके है मेरा, है। अब देखो, अब n इज ग्रेटर देन 1, तो अगेन दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। अभी देखो, अभी अगर मैं 1 मॉडुलस 10 करता हूँ, 1 मॉडुलस 10 करूंगा तो क्या मेरा रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना? 1 मॉडुलस 1 मॉडुलस 10 करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आना है, आप चेक कर लो। तो रिमाइंडर 1 आया तो आर वैल्यू विल बी असाइन टू 1। नाउ अगेन सम, सम अभी मेरी सम की वैल्यू क्या है, ये इक्वल टू, ये वाला तो भूल जाओ, ये वाला तो भूल जाओ। सम इंटू 10 क्या है? 432 इंटू 10, 432 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 4320 होगा कि नहीं होगा? 4320 में प्लस आर मतलब प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 4321 हो जाएगा, 4321 हो जाएगा। और 4321 किसको असाइन हो जाएगा? सम को असाइन हो जाएगा, सी सम इज इक्वल टू 4321। नाउ n मॉडुलस 10, n की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जीरो आएगा ना, 10 जीरो जा जीरो, क्योंकि अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करें, सी एक मिनट रुको, पॉइंटर ऑप्शन, या अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करूं तो ये तो जीरो ही आना है ना, 10 जीरो जा जीरो, क्योंकि जीरो से डिवाइड होगा तो n की वैल्यू, मेरी क्वोशंट क्या है? जीरो है, दैट्स व्हाई n वैल्यू हैज बिकम जीरो। अब बताओ, अब n की वैल्यू जीरो हो गई है, क्या ये लूप आइटरेट करेगा? क्या ये लूप आइटरेट करेगा? लूप आइटरेट नहीं करेगा, लूप आइटरेट नहीं करेगा ना, क्योंकि जीरो जीरो तो बराबर हो गया ना। तो दिस लूप विल नाउ ब्रेक, वाइल लूप के बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइंस ऑफ स्टेटमेंट होंगी, जो हम अगले अभी लिखने वाले हैं, वो एग्जीक्यूट हो। नाउ सी द ब्यूटी, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड विद 1 2 3 4। अभी हमें क्या मिल गया? अभी हमें क्या मिल गया? आपकी स्क्रीन पे देखो, वी गॉट द आंसर गाइज, वी गॉट द आंसर। सी सम इज इक्वल टू 4321, मतलब जो हमारा 1234 था, नाउ हैज इट बिकम 4321? क्या बन गया? अभी आपको समझ में आया? देखो, ऐसी होती है प्रोग्रामिंग, ठीक है? लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया, शायद अब समझ में आया होगा। हमने कहाँ स्टार्ट किया था? 1 2 3 4 से, और कहाँ पे आ गए हम? 4321 पे। हमने नंबर रिवर्स कर दिया गाइस। जस्ट गिव अ वर्चुअल क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस कॉपरेशन, है ना? तो क्या हमने कर दिया? एक छोटे से वाइल लूप से हमने क्या नंबर को रिवर्स कर दिया? ओके, ओके गाइस, सो okay, so I'll quickly implement this in the compiler. Okay, so what basically I need, first of all I need a num. So in int n, then what I need sum is equal to 0, right? Wait a minute, let me erase this, and yeah, so that it will create a space. Then what I required a remainder for r, and I required n for the quotient. So remember here, I'm writing here also, r is for remainder, and sum is for reverse number, and this n is for quotient, okay? Quotient, okay, n is for quotient, and n is for number, okay? Okay, not n, yeah, here, oh, wait, what I did, yeah, n is for quotient only, yeah, n is for, we are changing we are playing with n only, okay? Just forget this now. If you are already taken n, then just forget this, yeah. Now it sounds good. Now see, while n is greater than 0, n is greater than 0. Okay, wait, before this, just write me a statement, printf enter a number to reverse, okay? And now I'll write scanf %d comma implicit in the, I'll store this number in the n, okay? I'll store the number in n. Now while n is equal to n is greater than 0, now what was my first step? I have to find the r. So r, how will I find? N modulus 10, okay? I am finding the modulus of 10. बेसिकली आप सोचोगे, हाँ एक चीज बताना भूल गया, कि हम 10 ही से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, तो बेसिकली इसलिए हम 10 से कर रहे हैं, ओके? नाउ सम इज इक्वल टू सम इंटू
r sum into 10 plus r. Okay, सम इज इक्वल टू सम इंटू सम 10 प्लस आर। तो इनिशियली तो सम जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, बट जब जैसे जैसे लूप आइटरेट करेगा मेरा सम की वैल्यू इंक्रीज करेगी, राइट। सो सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस आर, और उसके बाद लास्ट में आता है मेरा एन, जो हमारा क्वेश्चन होता है, एन इज इक्वल टू एन बाई 10। जिससे हमें ये बेसिकली ये हमारा जो ये वाली लाइन है ना, ये हमारी बेसिकली आइट्रेशन का काम कर रही है। ये हमारी कंडीशन को बार बार प्लस माइनस कर रही है या चेक कर रही है, जो मतलब बेसिकली आई प्लस प्लस को यही रिप्लेस कर रही है। रिमेंबर दिस लाइन इज ओनली गोइंग टू रिप्लेस आई प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना। तो नाउ printf printf what I should write, yeah, original number. Okay, wait a minute, original number is परसेंट डी, या यहाँ पे मैं ना एक कॉपी कर देता हूँ, एक नंबर को ना जस्ट मैं कॉपी कर दूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर एन लिखूंगा, बिकॉज एन इज गोइंग टू चेंज ना, एन तो बार बार चेंज हो जाएगा ना, तो मैं जस्ट जो भी यहाँ पे एन आएगा ना, यहाँ पे मैं ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल्स के नाम से सेव कर देता हूँ, ORIGNL, ठीक है। तो जो भी एन की वैल्यू आएगी ना, उसको मैं इसमें कॉपी कर दे रहा हूँ। जो भी एन की वैल्यू है, मैं एन की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग द कॉपी ऑफ इट, ताकि मैं यहाँ पे ओरिजिनल और रिवर्स नंबर लिख सकूँ, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर इज परसेंट डी ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एन की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, एन की वैल्यू तो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी ना, इसीलिए हम यहाँ पे ओरिजिनल नंबर जीरो तो है नहीं हमारा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओरिजिनल। नाउ प्रिंटफ ये हो गया, यहाँ पे मैं स्लैश एन डाल देता हूँ, एंड रिवर्स नंबर, यहाँ ओरिजिनल की जगह आई हैव टू चेंज इट टू रिवर्स। रिवर्स नंबर इज परसेंट डी, एंड ओरिजिनल के बाद क्या हो जाएगा, एन, सॉरी सम में हमारा जो भी हमारा रिवर्स नंबर है वो हमारा सम में स्टोर रखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ड्राई रन में दिखा दिया। सो दिस इज द बेसिक कोड, लेट मी रन दिस। Okay, the language for this will be C, and let me run. Yeah, okay. Enter a number to reverse. So I'll go with my 1 2 3 जो अभी हमने देखा, 1 2 3 4 5, इससे ही चेक करते हैं। तो C, the original number is 1 2 3 4 5, but the reverse number is 5 4 3 2 1. Okay, so let me run again. Let me run again. So okay. Let me get with my favorite number जो मैं हर में यूज करता, 2708, and yeah, 27, this is August ना, yeah, this is August. Okay, now see, the original number is 2708, but the reverse number is 8072, 8072। तो आप किसी के साथ भी चेक कर सकते हो। Guys, I'm totally exhausted now because this time this is around 3 o'clock in my clock, and I am recording this video for you all because I do not get time basically. In morning I have to do my college lectures, then evening I do my preparations, and then in night I get a spare time for you all. Okay, it's okay. I am totally exhausted. I am feeling sleepy also, but let me run the last number for you all. So it will be 519219, and you can check this, the reverse, any number you can check it for, that is not the issue. So I hope this you understood the how to reverse a number. So till next video, please learn, and keep practicing, keep writing it thousands of times, then only you'll understand. So till next video, please keep learning, keep watching, and keep coding. Jai Hind.